everyone in today's session. Today we have got a very interesting session. Good evening to all the queens. Thank you for joining today's session of Parul Sharma, a very experienced healer, coach, trainer, and we have got so many other ladies also, all the queens who are joining for the first time. That we have got Rima, and we have got the old members like Dr. Anjali and Rakhi from Ghaziabad and Lucknow. So let us introduce ourselves. Parul, please start yourself, then we'll ask the other queens and we'll start the session. Thank you, Ashuji. So I'm Parul Sharma, learning Gita from past 25 years, practicing, living by it, and now I'm teaching it. So that is a small introduction I can give. I teach Bhagavad Gita, I teach Upanishads, I teach Yoga Vashisht. And because it is very, very important for us to understand that how the woman is that Shakti and how to raise that energy, which is very, very important. So the path of transformation, when it came to me, then I held the book and I feel I'm responsible enough to share the same wisdom with everybody. So that's it. So please continue. Thank you, Parul. Yes, Dr. Anjali, tell about yourself. Yeah, so good evening, all of you, from the Queen Size and Live Like Queen Size, yeah, of course. So, मैं Dr. Anjali from Lucknow से हूँ, Anur Mangal Psychiatric Center. This is the oldest hospital for the psychiatric patients. I am working here since 30 years for the last 30 years. And और क्या मैं बताऊँ, टेरो रीडर भी हूँ, हिप्नोथेरेपिस्ट भी हूँ और राजयोगा प्रैक्टिशनर। मैंने बचपन से ही राजयोगा प्रैक्टिस करती आ रही हूँ। तो इस प्रकार से या और मैं एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा रही हूँ 28 जून को चिल्ड्रंस के और यूथ के ऊपर, जो कि ड्राइंग कंपटीशन एंड डांस परफॉर्मेंसेस पे है। ये कार्यक्रम ऑफलाइन में करा चुकी हूँ ऑडिशन और ऑनलाइन ऑडिशन चल रहा है। और लास्ट ग्रैंड फिनाले 28 जून को होटल सेठी ग्रैंड में ट्रांसपोर्ट नगर में मैं ये प्रोग्राम करा रही हूँ। और ब्रह्मा कुमार से लखनऊ। Okay. Thank you, Dr. Anjali. Then next, Rima, please come on the camera and introduce yourself. बुला लेती। अच्छा, वो मेरे दिक्कत ही थी, वो तो मेरी बाई आती थी, सब जगह से काट के चल जाती। मैं आपको चलावा ही लाई। मैं तो उसको वो बोलती भी शाम को Rakhi, please introduce yourself. विनीता जी, आप अपना म्यूट कर लीजिए प्लीज। क्या? Rakhi, Rima. Yes. So, hello all. Hello, queens of Ashu Chopra's WhatsApp group. So, I'm Rima and I'm from Ghaziabad, and we run a company, I and my friend come partner Pallavi, digital marketing company, and we do lead generation also through LinkedIn without any spending any amount. I think you have seen my ads also, whatever. So because LinkedIn has so many, I can say ki there are lots and lots of people are there, and you can generate leads if you know the right strategies. So that we do, and we are into website, SEO, performance marketing, social media management, and many more. So this is just a short intro of mine. Thank you so much. Thank you. Hello, Rima ji. I will connect with you अगर आप गाजियाबाद में हैं तो. Okay. I'm Rakhi. मैं HDFC लाइफ की फाइनेंशियल कंसल्टेंट, मैं भी डालती हूँ आज। काफी अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं विद इंश्योरेंस कवर्स। लोगों को मिथ है कि ये सिर्फ इंश्योरेंस करती है, बट इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, वेरी गुड रिटर्न्स हैं, बहुत अच्छे। लोगों ने डबल भी कमाए हैं इसमें HDFC लाइफ में। यूलिप प्लान में भी बहुत अच्छा रिटर्न्स है। और मैं सिंस 5 years टैरो रीडिंग में भी हूँ, तो मैंने एस्ट्रोटॉक पे भी काम किया है। फिर आई एम नाउ डूइंग फ्रीलांसिंग एंड थ्रू माय लीड्स एंड इंस्टाग्राम। दैट्स माय शॉर्ट एंड स्वीट। पहले मैं लखनऊ में थी, अभी लोग 5 years से आई एम इन गाजियाबाद, बट बेसिकली आई बिलोंग टू गाजियाबाद। माय पेरेंट्स आर फ्रॉम गाजियाबाद।
कवि नगर। ठीक है, Okay, नाइस thank मीटिंग you. यू। थैंक यू आशु जी। आप दोनों Yes, के very पीछे good. जो बैकग्राउंड है ना वो भी सेम है। ऐसा लग रहा है एक ही जगह बैठी है दोनों। नहीं, वो तो गा- कोई भी कर सकता है, आप लोग भी कर सकते हैं वो जो हाँ, मतलब ऑप्शन। it is a good coincidence that both of you reside in Yes. Ghaziabad. Yeah. You have same background. Great Yes. observation, Parul ji. Great observation. Mystically, it happened. We are from same place and with the same background. Yeah. Yes, Vinita, tell about yourself. Vinita has joined. She's gone. ये एक और है कौन? Who she? I don't know. Chinese language लिखी हुई है। Who is she? Please come on the introduce yourself. XYZPL क्या है ये? मुझे चलो, लग रहा anyways, है लिखा है ना, वो बस सिंपल एक वर्ड लिख दिए हैं सो दैट पीपल नॉट अंडरस्टैंड देयर नेम मे बी। so how will we understand who she is? हाँ, यू कैन आस्क दैट पर्सन, हैश के साथ कुछ लगा हुआ है, लिखा हुआ है। इफ दे आर देयर तो दे। Parul, let's start the session. So good evening, everyone. So we have got a very interesting session, our Live Like Queen Size group today. This is the series that Parul Sharma is taking regularly, and she's already taken three chapters. So today is Four. another interesting chapter. This is the fifth one. Parul, all the best. Please start your session. Thank you so much, Ashuji. This is the fifth session I'm taking. I've Fifth already chapter. taken. अंजलि भी चली गई, डॉक्टर अंजलि also gone. She is there कि नहीं? नहीं, वो भी नहीं है। Maybe she'll join. It's okay. कई बार लिंक भी नहीं काम करता है ना, तो it's okay. आप एक काम करो, Parul, take a photograph of the session and share it in all the three groups. Then we'll start the session. Please, all of you come on the camera so we can see a nice photograph face of you all. कोई बात नहीं. We are the only good-looking people. Please take this photograph. We are the only sincere ones. We are the sincere ones, dedicated ones. उसके बगैर कुछ काम नहीं चलता। I'll take once more. वो ठीक नहीं आएगा। I just wanted to share that I have a meeting at 4:30, so I will leave at 4:30. Oh, Please no, don't you have mind, to huh? delay your meeting. You have to delay your meeting today. Rima, this is the first session. You need to be there. I cannot do that. So sorry. I'm so sorry that. चलो, no problem. चलो पारू, आप मेरे को भेज दो. I'll share it in the group. Okay, मैं अभी करती हूँ आशुजी, एक मिनट। So you all can see the screen now. Yeah. So we are starting this. We have actually in the first chapter, session, I had spoken about the gunas in us. Gunas means the quality of thoughts we are carrying. So as we are studying this entirely through the knowledge of Bhagavad Gita, so understand that whatever we are going to learn is about the self. Because it's a journey of self-reflection and it is a journey of self-awareness. Okay, so everything we are going to talk, whatever you're going to understand, first take it on yourself. पहले खुद को समझेंगे, उसके बाद outside situation समझेंगे. Okay, so जो फर्स्ट मैंने लिया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप ग्रुप में जाकर देख सकते हैं. आई थिंक अवेलेबल होगा वो सेशन. सो अब आज जो हमने पढ़ना है, दैट इज ब्रेकिंग इमोशनल ट्रिगर्स बिफोर दे कंट्रोल अस. अब इमोशनल ट्रिगर्स हम सबके अंदर होते हैं. वी ऑल हैव ट्रिगर्स जहाँ बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, जहाँ एक्सपेक्टेशंस मेट नहीं होती हैं, जहाँ हम बहुत अनहैप्पी फील करते हैं. कहीं ना कहीं इमोशनल रिस्पॉन्स है हर चीज का. और वो जब हम रिएक्शन दे चुके होते हैं, उसके बाद भी रियलाइज कि ये नहीं करना चाहिए था. सो दैट इज अ इमोशनल ट्रिगर विच इज एक्चुअली स्ट्रॉन्गर देन द एक्चुअल इवेंट. वो हमको बहुत ज्यादा अंदर से हिला के जाता है और बाद में वो रेपिटेशन हमारे माइंड पर कॉन्स्टेंटली चलती रहती है. So these are the moments of self-reflection. Why are we
triggered. Why do we get triggered? We get triggered because of the past hurts, unmet expectations, need for validation, fear of rejection, attachment to the outcomes. ये सारे points हैं जिसकी वजह से we are often triggered. And ये ऐसे emotions हैं जो हम अपने ऊपर अपने अंदर नहीं देखते हैं. We are more towards the outside world. उसने ऐसा कहा, उसने ये नहीं किया, उसने ऐसा कहा. So it is always about the outside world rather than understanding कि वो outside world inside का reflection है, ना कि outside inside है. Because Gita teaches the life is inside out. जो आपके अंदर है वही आपके बाहर है. और ये चीज एक्सेप्ट करना सबसे मुश्किल काम है हमारे लिए, क्योंकि हम अपनी चीजों को हम एक्सेप्ट नहीं करते. इट इज वेरी इजी टू blame others for that. Now, how triggers show up? Like anger, defensiveness, withdrawal, overthinking, tears, or shutdown. I have a student who's learning Gita from me, and he says that whenever he is judged for something, he doesn't want to talk about. Whenever somebody judges him, he wants to run away. कि मुझे टोको मत, मुझे कुछ बोलो मत. So अगर मैंने गलती किया है तो he said I'm an adult, लेकिन सब मुझे कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. I'm not able to. So that defense mechanism in him is so high that neither he can say something, nor he can actually shout or something. उसको अपने अंदर को एक्सेस करना नहीं आता. ओके, उसको अपने अंदर उस इमोशन को एक्सेस करना नहीं आ रहा है कि मैं अगर केयरलेस हूं कहीं पर तो मुझे डांट पड़ रही है. लेकिन वो केयरलेसनेस में अगर हम बढ़ते जाएंगे तो केयरलेसनेस सॉर्ट आउट नहीं होगी. सो व्हाट वी डू इज हम अपना बिहेवियर चेंज नहीं करते हैं. We start running from the people because we see them angry. So the point to understand here is that how triggers show up is somebody, किसी ने आपको जरा सा टोक दिया और ये issues कहाँ से आते हैं? Basically from the childhood. When there are so many people, when the parents are too many, comparison is lot there. बहुत ज्यादा कंपैरिजन आपके घर में है, बहुत ज्यादा क्रिटिकल है पेरेंट्स, और परफॉर्मेंस का प्रेशर सारा टाइम चल रहा होता है. सो दैट इज वेयर these इमोशंस when you can't express, कि आप बड़ों को कुछ बोल नहीं सकते येट, वो अंदर सप्रेस हो जाता है और आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही है. व्हाई? बिकॉज यू एक्सपेक्टेड समथिंग बट आपको चाहिए कुछ था लेकिन आया कुछ और. सो एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही. अगर सब कैमरा पे आएंगे तो आई फील लाइक आई एम टॉकिंग, अदरवाइज इट लुक्स लाइक आई एम टॉकिंग टू द वॉल्स. मैं खुद से ही बातें कर रही हूँ. So anger, defensiveness, withdrawal, overthinking is something we all do. जैसे अगर हमने गीता, अगर आप लोगों ने गीता पढ़ी है कभी? Anybody has read? So आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है जिसमें अर्जुन का जो मेंटल स्टेट है बहुत ज्यादा खराब है. एंड इफ यू रीड each and every statement he gives as a conclusion of not fighting the war, it looks real. मतलब अगर तर्क देखें तो ऐसे लगता है अर्जुन हर बात सही कह रहा है, लेकिन उन सब में भगवान ने उसको पूरे एक चैप्टर में कुछ भी नहीं बोला. ही स्टार्टेड स्पीकिंग फ्रॉम द सेकेंड चैप्टर, और उस चैप्टर में भगवान ने बोला अर्जुन तुझे क्या चाहिए, सीधा तुझे क्या चाहिए. बिकॉज जब इमोशंस बहुत हाई होते हैं तो हमारा जो एनर्जी लेवल है और जो थॉट प्रोसेस है उसमें क्लैरिटी नहीं होती, हम बैठ जाते हैं बिल्कुल, एंड वी स्टार्ट सल्किंग. सो उन्होंने वहां पर बोला अर्जुन तुम औरत की तरह रो रहे हो. So he did not mean that ladies cry, he means that ladies are emotional. And because of the emotional, we have lot of, defensiveness in protecting the self. और हम लोग
आप अगर आपका घर में कभी किसी से कुछ बात होती है तो यू सी के मेन जब वो वापस आएंगे दे आर ऑल क्लियर, उनके माइंड में उतना कुछ होगा नहीं, लेकिन हम पूरा दिन वही चीज को सोच रहे होते हैं कि इस बात को कैसे मेरा खत्म मन करूं। ही नहीं किया है खाने का, अंदर कर दूं सामान। So देयर यू नो ओवर थिंकिंग, जो पॉइंट अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर में बोले भगवान के हिसाब से, we all overthink in that sense where we need that emotional regulation, कि जो चाहिए उस पर फोकस ना करते हुए हम सारा दिन रोटेट करते हैं इमोशंस के बीच में, एंड वी कीप ऑन आइदर फीलिंग आवरसेल्फ विक्टिम और हम दूसरे को विक्टिम बना देते हैं, राइट। सो यहाँ भगवान हमें ये बोलते हैं कि फ्रॉम अटैचमेंट कम्स डिजायर्स, फ्रॉम डिजायर arises anger. Now, does it mean that we should not have a desire? No. We should have a desire. We can have a desire. लेकिन important point ये है कि जब desire अपने अंदर आई है तो सबसे पहले ये समझना है कि जो आई है वो पूरी होगी, लेकिन सही सोच रख के, गलत सोच के नहीं। So mostly if the desire, you know, attachment में मेरा उसने ये काम मेरा नहीं किया, मैंने बोला था उसने नहीं किया, है ना, उसने मेरे को ऐसे जवाब दिया। So और there are many desires which are या आप मेरे से बात नहीं कर रहे, you know, अगर आपको खाना आपने बनाया and people are not appreciating you, even then we are triggered, अरे पूरा दिन लगा दिया मैंने, एक शब्द भी नहीं निकला, ये expectation है। So the desire to be, you know, validation is not bad, but when you do something very happily, very joyfully, आपको उस validation की जरूरत नहीं पड़ती। So then there is no attachment to what you have done because you have done it joyfully, right? So जब आपको पता है कि आप अच्छा खाना बनाओगे तो आपकी फैमिली उसको खाएगी, they'll be nourished. So isn't that more happy than just getting, you know, a validation कि आपने अच्छा बनाया या नहीं बनाया? क्योंकि जब आप काम अच्छा करते हो, आपके बिना बोले ही लोग आपको आकर बोलते हैं यार you did a good job. It is your workplace, it is your home, wherever. Whenever you do something joyfully without attachment to मुझे क्या मिलेगा इसके बाद, आप हमेशा उस एक्ट में एक डिवाइन एक्ट डाल देते हैं। बहुत बार हम यू नो किसी को हेल्प चाहिए, आप सडनली किसी का हेल्प कर दो, आउट ऑफ द वे यू हेल्प समबडी एंड द पर्सन इज नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, यू नो, यू इन दैट मोमेंट आप उसके लिए भगवान बन गए। तो एग्जैक्टली वही चीज है कि वो भगवान बन गए में हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन भगवान बोलते हैं उस एक्ट को भी तुम मुझे ही सरेंडर कर दो, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग इज नाउ यू आर क्रिएटिंग बैंक ऑफ फॉर्च्यून फॉर योरसेल्फ। So desire is not bad. Attachment to the desire कि जब तक ये मिलेगा तभी तो होगा। I have a student, you know, she wants to get married, but उसकी जिद है कि ऐसे ही होना चाहिए, और ब्रह्मांड कभी भी हमारे हिसाब से काम नहीं करता। So for getting a mate, for you know, a bride or a groom for self, it is not dependent how we are going to meet the partner. The important point is the partner we are meeting has the qualities which we are looking for, right? But जब हम जबरदस्ती अटैच हो जाते हैं, नहीं ये चीज तो यही करेगा, ये चीज तो यही करेगा, जैसे भगवान बोलते हैं ना, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। Now what does that mean is again the desire is there कि कोई ठीक हो जाए, लेकिन इच्छा मेरी है कि मुझे क्या मिलेगा, तो हम अपने ही कर्म में अटैच हो जाते हैं और वहीं हम सफर करते हैं। So awareness helps break the chain before reaction takes over. So when you become aware of your own self, जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हो, then you start realizing, am I getting attached to something? Am I too attached to something? You know, at times we are so attached with the family members. बच्चे हैं, बड़े हो गए, कहीं बाहर गए, and parents start complaining, आप तो पूछते ही नहीं हो, आप लोग तो बात ही नहीं करते हो, आपके पास टाइम ही नहीं है। Why? Because the children have something to do, and as elders we forgot that we have a life and we have to do something. Okay, this meeting will end in 10 minutes.
So we'll wrap up in 5 minutes and then we'll rejoin the same link on this again. Okay, are you all getting my point? It is not that कि मैं ही बोलते जाऊं. Sorry. Somebody has said something, immediately reply नहीं करना. Immediately वो trigger जो आ रहा है उसको थोड़ी देर के लिए हैंडल करना है अपने अंदर, उसको थोड़ी देर के लिए अपने अंदर संभालना है, एकदम से रिप्लाई बैक नहीं करना. Then pause, then breathe and notice the emotion. Delay your response and choose consciously. मुझे इस बात को आगे बढ़ाना है सॉर्ट आउट करके या वापस रिटेलिएट करके. उसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों, उसने मुझे ऐसा कहा ही क्यों. यू नो, दिस इज द ईगो विच इज द ट्रिगर. अगर हम महात्मा बुद्ध को देखें तो जब अंगुलीमाल उनके सामने आया था तो अंगुलीमाल का एक ही पर्पस था कि इनको भी खत्म कर दूं. बट द काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ही हैड ओनली बिकॉज बुद्धा वाज स्टेबल इन हिमसेल्फ. सो हम दूसरे पर्सन को तभी बदल सकते हैं जब हम आत्म संयम में हैं, जब हम खुद की इक्वानिमिटी में हैं और जब हम अपने ट्रिगर्स को और अपने इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे होते हैं. सो ट्रिगर आने से जब आता है उससे पहले एग्जैक्टली सोचना है व्हाट हैपेंड, यू नो, व्हाट डिड आई मेक इट मीन. दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम हमने सिचुएशन को एक एंगल से सोचा है लेकिन वो सिचुएशन का एक्चुअल मतलब ऐसा नहीं था. बट हमारे जो आंखों पे लेंस लगा है हमें वो सिचुएशन बिल्कुल वैसे ही दिखाई देती है क्योंकि हम एक ही तरह से सोचने के प्राणी हैं. We keep on thinking in a same way. हम अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा भी इधर उधर नहीं करते. इसीलिए you know, what story am I telling myself right now? Now this is the most important part. हम बोलते हैं कि एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है. ओके, तो कॉन्शियस माइंड वो है जो आप बाहर देख रहे हो, लेकिन सबकॉन्शियस वो है जो वही दिखा रहा है जो आपके अंदर चल रहा है. नॉट समथिंग अलग, बाहर कुछ अलग नहीं हो रहा है. तो जो स्टोरी हम अपने आप को दिखा रहे हैं कि ये पर्सन का इससे झगड़ा है या मेरी इनसे नहीं बनती है, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू. यू नो, इन द मॉर्निंग व्हेन आई वाज टीचिंग टुडे, तो मॉर्निंग के सेशन में जो लेडी मेरे साथ बात कर रही थी, शी सेड कि फर्स्ट टाइम मैंने अपने ऊपर नोटिस किया कि कल मेरे हस्बैंड से थोड़ा सा झगड़ा हुआ और he was literally shouting at me, but eventually instead of feeling bad मैं बैठ गई और मैंने ये रियलाइज किया कि ये गुस्सा तो मेरे अंदर से ही निकल रहा था और मैं एज एन एनर्जी कॉन्टिन्यूसली डाले जा रही थी. तो मैम मुझे मेरे हस्बैंड से अलग क्या मिलेगा? She said this is the first time it came to my realization how and what is going within me. नहीं तो इससे पहले it was a very ignorant life. गीता पढ़ने से पहले मुझे कभी समझ नहीं आया कि इमोशंस को हैंडल कैसे करते हैं या खुद के इमोशंस को भी हम एक्नॉलेज करते हैं. सो दिस वाज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड आई रियलाइज्ड कि शुरुआत तो मैंने ही करी थी, वो अपने आप से कुछ नहीं बोले हैं. यू नो, सो दिस इज अ गुड वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ, to take a pause and realize ke what energy am I, sending out, how am I looking at the people and the situation, and जो वहां से आउटसाइड से आ रहा है वो अलग नहीं है, बट हम इतने एंटेंगल हो चुके होते हैं कि उसको समझना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. सो वी हैव ओनली 2 minutes. हम इस सेशन को यहीं एंड करते हैं और सेम लिंक पर आप दोबारा से ज्वाइन करो, इसी के आगे हम फिर से कंटिन्यू करेंगे. नहीं, सेशन को एंड नहीं करते हैं, सेशन कंटिन्यू रहेगा. वी विल ज्वाइन बैक ऑन द सेम लिंक. लिंक अभी रीजॉइन ज्वाइन करो आप. कंटिन्यूएशन में है सेशन. विल ज्वाइन ऑन द सेम लिंक. अंजुलता जी इसी लिंक पे फिर से ज्वाइन करिए. ज्वाइन बैक ऑन द सेम लिंक. स्टॉप द रिकॉर्डिंग आफ्टर